Hi everyone, hope you are doing well and your portfolio is also doing really well. Now, why did I say portfolio and not stocks? Because see, whenever you are investing in equity, I do believe that it is all about the portfolio, आपने कैसे उसको construct किया है. And while stocks may have different behavior, ultimately for an investor, it is very important कि उसका portfolio कैसा कर रहा है. Now, over the last 3-4 months, we have seen क्वाइट टर्बुलेंस इन द मार्केट. मतलब मार्केट बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन आया है एंड सबके पोर्टफोलियोज ऑलमोस्ट ब्लीड किए हैं. एंड इट इज़ंट अ सरप्राइज. मतलब अगर आप लास्ट के मेरे 1-2 वीडियोस भी देखोगे, आई हैड क्लियरली मैंशनड कि फ्रॉथ लग रहा है मार्केट के अंदर. एंड जब मैंने लास्ट वीडियो भी बनाया था तब भी एक करेक्शन था. So, and nobody can time the top or the bottom in the market. It's as simple as that. ऐसा नहीं है कि somebody is able to sell at the top and buy at the bottom. And जो लोग ये कह रहे हैं, I think you have to take it with a pinch of salt. So we all make mistakes. Why I'm making this video? It is not about discussing any macro या किसी stock के बारे में या किसी sector के बारे में, but it is all about द काइंड ऑफ लर्निंग आई हैव कि मैं इन्वेस्टिंग को किस लेंस की तरह देखता हूँ या एक पोर्टफोलियो को किस लेंस की तरह देखता हूँ. सी, वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, एंड यू माइट डिफर विद मी कि ये जो मैं बोल रहा हूँ कि मे बी इट डजंट सिट वेल विद यू, बट आई डू बिलीव कि अगर आप 18-20% केगर कमाते हो मार्केट के अंदर ओवर अ लॉन्ग टर्म, you have made it as an investor. मतलब आप अच्छा इन्वेस्टिंग कर रहे हो. Now there will be people who will tell you कि we make 30% very consistently. There will be people who will tell you that we make 40% very consistently. But it is not about comparison. What matters is कि आपका process क्या है market के अंदर. How are you navigating it? So I just thought of making a small video, not a small video of course. So I have written quite a lot of points in this video, and I have related investing to how you make a cricket team and how an investor can be the captain and the star player in that team, and कैसे हम cricket से या किसी भी sport से parallels ले सकते हैं in terms of portfolio construction. There will be some names of the stocks which I will be taking. Please don't take it as a buy or sell recommendation. Do your own diligence, but I'll just tell you how I look at periods in the market when there's a lot of drawdown, कैसे उसके अंदर behave करना चाहिए, when everything is working well, what you should keep in your mind, and कैसे वो थोड़े से frameworks होते हैं which I will not be defining for you because आई फील कि हर एक का रिस्क एपेटाइट अलग होता है, इन्वेस्टिंग स्टाइल अलग होता है, एंड यू शुड बी कॉपिंग दैट. बट just trying to make a cool video on how the lessons from a cricket team or from a cricket captain can be incorporated in your investing journey. So the most important point is respect the conditions. See, if you have won the toss, you have elected to bat or bowl first. But अगर आप जाते हो and you are hitting the ball out of the park, जो एक bull phase में होता है market के अंदर, कुछ भी खरीद लो, चलेगा ही चलेगा. And when the tide turns, मतलब market के अंदर जब आपको लगता है कि the direction of the market can change or there is a likelihood, you need to respect the conditions. You cannot be like कि मुझे dip के अंदर buy करते ही रहना है. See, and even if you are hitting the ball out of the park, सब कुछ click कर रहा है, there will come a time in a cricket match also when a bowler will come and he will take 2 or 3 quick wickets. Now, if the next batsman also comes in and starts playing like that, you might as well lose the match from an advantageous position. तो ऐसा नहीं करना है मार्केट के अंदर कि यार अटैक ही अटैक करना है. कभी कभी you need to sit back and see through a phase when you don't know how it is playing, right? You're not even clear whether the correction has started for the long run या correction बहुत जल्दी over होगा. तो आपको जब आप indecisive हो, you need to play defensively and not just attack over there. The most important thing for me is that you should be the captain of your portfolio. So any stock which is a part of your portfolio, and this is very important, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ जितने भी मैंने बनाए हैं, प्लीज़ डोंट फॉलो एवरीवन कि इसने ये स्टॉक बाय किया, इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है. सी, पीपल विल नॉट टेल यू देयर एंट्री प्राइस पॉइंट्स, पीपल विल नॉट टेल यू देयर एग्जिट प्राइस पॉइंट्स. सो यू नीड टू हैव योर ओन मेंटल मॉडल्स. यू कैन टेक इंस्पिरेशन, बट हर स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो के अंदर है, it should be your call that whether it deserves to be in your portfolio, whether you need to trim it, whether you need to increase the allocation. It should be your call. You are the captain, right? Those players, those stocks are your team. So you should have a clear vision कि यार ये क्यों आ रहा है, इसको मैं क्यों ड्रॉप कर रहा हूँ, इसको मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ, इसको मैं इस कितना allocation दे रहा हूँ. It should be your call.
Another thing is, and everybody has different approach. So this video is primarily for people जिनका incline थोड़ा सा fundamental investing की तरफ है, and I'm not talking about fundamental investing for 30-40 years. I'm just saying कि 3-4 years का आप time देते हो किसी भी stock को, when it enters your portfolio, you have a vision कि I would want to hold it for some long term perspective, which is not like 3 days, 4 days or 2 weeks or 3 weeks. तो don't shuffle too much. अगर आपने investing thesis किया है and you have bought a stock, as long as that thesis holds, revisit that. मतलब उसको revisit करते रहो. ऐसा नहीं है कि उसको revisit नहीं किया और ऐसे ही पड़े रहने दिया, रिजल्ट्स खराब आ रहे तो आप उसको फिर भी रखो, मैनेजमेंट कमेंट्री खराब है आप उसको फिर भी रखो, मार्जिन्स के ऊपर प्रेशर आ रहा है, डी रेटिंग हो रहा है बिकॉज ऑफ वन ऑफ द अदर रीजन, आप उसको रखे रखो. बट यू शुडंट बी जस्ट शफलिंग आउट बिकॉज लेट्स टेक फॉर एन एग्जाम्पल, एक ट्रांसफॉर्मर कंपनी में इन्वेस्ट किया, कल को दूसरी ट्रांसफॉर्मर कंपनी का आईपीओ आ गया एंड वो स्टॉक भागने लग गया, तो पहले वाले को छोड़ के दूसरे वाले में चले गए. इट शुडंट बी लाइक दैट. सो एनी शफलिंग विच हैपन्स शुड बी डन विद द केयर, बिकॉज अल्टीमेटली अगर टीम सॉलिड होगी, उसको टाइम दोगे परफॉर्म करने का, तभी इट विल विन यू इन द लॉन्ग रन. Next thing is drawing from the earlier point only when I said ki don't shuffle too much. Now sometimes what happens is that you are very confident about a company and सब कुछ उसके फंडामेंटल पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बट द मार्केट इज़ फैक्टरिंग समथिंग दैट द स्टॉक इज़ नॉट क्लिकिंग. मे बी मार्केट कुछ, बिकॉज मार्केट इज़ ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग, तो आपका स्टॉक क्लिक नहीं होगा, काफ़ी टाइम होगा उसका जेस्टेशन पीरियड में. सो ये काफ़ी पेनफुल हो जाता है पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द बुल रन ऑफ द मार्केट, कि आपने स्टॉक के अंदर 10-15% एलोकेशन कर दिया या 10% एलोकेशन कर दिया एंड वो आपका कैपिटल ब्लॉक हो गया एंड ऑल द अदर स्टॉक्स आर रनिंग. सो वन ऑफ द अप्रोचेज कैन बी कि अगर आपने वो एलोकेशन किया है एंड यू आर बिल्डिंग द एलोकेशन एंड इफ़ यू सी कि सर्टन हेडविंड्स प्राइज इन कर रही है मार्केट, या कुछ ना कुछ प्राइज इन कर रही है जिस वजह से स्टॉक मूव नहीं हो रहा है, इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप अपना एलोकेशन थोड़ा सा ट्रिम कर दो. यू कैन ऑलवेज रिटर्न टू द पार्टी, मतलब आप वापस आ सकते हो. सो कितना परसेंटेज एलोकेशन करना है आपके प्लेइंग 11 में, वाइल यू माइट नॉट थ्रो द स्टॉक आउट कि यार मेरे को बेचना नहीं है, एंड सबके बायसेस होते हैं. देर आर पीपल हु आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि यार मैं इसको अभी बेच रहा हूँ एंड इसको मैं बाद में, इट इज़ पार्ट ऑफ माई वॉच लिस्ट, आई विल बाय इट अगेन. दे आर ऑल्सो एबल टू डू इट, बट समटाइम्स यू नीड टू शफल द एलोकेशन पार्ट कि हाँ ये 10% एलोकेशन डिजर्व करता है, बट आई वुड वॉन्ट टू स्टार्ट विद 4% बिकॉज इट्स नॉट बिहेविंग द वे इट इज़ सपोज टू बिहेव. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एक जो पॉइंटर है, एंड ये एक बग है मोमेंटम इन्वेस्टिंग का, कि मुझे पता है कि मैं टेक्निकल स्टडी कर गया हूँ, मेरे को टेक्नोफंडा बहुत अच्छा आता है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, whatever I will chase, it will work for me. See, this is almost like Virat Kohli playing the same shot and edging it to the slips. He's a very good batsman, he's a legend, but उसको पता है कि ये प्रॉब्लम है. ये जो एक प्रॉब्लम है ना सबके साथ की, आई वुड से टू द ट्यून ऑफ की कीड़ा है सबको कि मेरे को इस स्टॉक में भी इन्वेस्ट करना है, मोमेंटम है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, दिस टेक्स यू डाउन. सो समटाइम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू लेट गो ऑफ सर्टेन अपॉर्चुनिटीज़. एंड हमने एक वीडियो के अंदर बात किया था एरर्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन. तो एक फाइन बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मतलब यू हैव टू रिस्पेक्ट कि आई एम here for the long run, मतलब I have to play for 3-4 years, this portfolio I am constructing for the long term. So इसके अंदर shuffling भी मैं कम से कम करूँगा. So don't chase everything because ultimately that will increase your mistakes also. And on the other side I am also saying कि आप ऐसा भी ना करो कि you keep your eyes closed. मतलब you should always be on the lookout for the stocks which are part of your watch list, बट जो अभी आपके प्लेइंग 11 में नहीं आए हैं बट जो कंसिस्टेंटली अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं. सो यू नीड टू हैव अ फाइन बैलेंस, बैक द टीम विच इज़ देयर एंड कीप अ क्लोज आई ऑन द स्टॉक्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ योर टीम बट विच आर परफॉर्मिंग वेल. सो कल को क्या होगा, इफ वन ऑफ द प्लेयर्स हैव टू बी ड्रॉप्ड, यू नो व्हाट टू इंक्लूड ऑल्सो इन योर पोर्टफोलियो. Very important thing, and we forget it the most conveniently. Starting valuations do matter. मतलब आप ये सोचो कि एक बहुत अच्छा आपको वो मिल गया है, बुल रन मिल गया है, 100 के पी के ऊपर भी स्टार्ट डिफेंडिंग, 150 के पी के ऊपर भी स्टार्ट डिफेंडिंग कि 3 साल का फॉरवर्ड पी, 2 साल का फॉरवर्ड पी वुड बी 30-40, इतना अर्निंग्स ग्रोथ आने वाला है. सी यू हैव गॉट टू बी वेरी क्लियर इन योर हेड कि कोई भी कंपनी जो ऑपरेट कर रही है, एनी बिजनेस दैट इज ऑपरेटिंग, इट्स ऑपरेटिंग इन एन अनसर्टेन एनवायरमेंट. Today the picture might look very rosy, 6 months down the line anything can happen, right?
इफ़ इट्स अ कंज्यूमर कंपनी, रिसेशन आ सकता है, कोई कंपनी अगर एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा कर रही है, टैरिफ्स आ सकते हैं, डंपिंग हो सकता है इंडिया के अंदर, आपके एकदम से मार्जिन कंप्रेस कर जाएंगे, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट. सो इट इज़ ऑलवेज गुड कि अगर आपके पास वैल्यूएशन का बफर हो, आप किसी कंपनी के अंदर, and I'm not saying कि 100 PE का company cannot become a multi-bagger. It can become a multi-bagger, but you just understand from this point of view, you buy something at a PE of 100 and the market derates it significantly. Market बोलती है आगे जाके कि I want to give it a PE of let's take 40. I want to derate it significantly. आपका earnings में भी growth आएगा. You will not earn the returns. The company is growing, everything is growing. Similarly, if you had bought the same company at a PE of let's take 30, while it moved from 30 to 100, even if it got derated, you still make more money. So starting valuations हमेशा matter करता है. It's just like a cricket match. You know, I will be able to chase in the last. एंड आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर हो, देर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, बट एक अच्छा बॉलर आया, उसने एक अच्छा ओवर डाला एंड द इक्वेशन बिकम्स कि यू कैन नॉट चेज इट, यू जस्ट लूज द मैच. सो यू डोंट टेक इट टिल द एंड कि यार मेरे को डीप लेके जाना है, वहाँ से मैं जीत जाऊँगा. स्टार्टिंग वैल्यूएशंस डू मैटर. नाउ एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, एवरीबडी सेज कि एक स्टॉक है, मैंने बाई किया, वो 2x हुआ, 3x हुआ, अब उसको मैं बेच दूंगा, मैं अपना इनिशियल कैपिटल निकाल लूँगा एंड आई विल इन्वेस्ट इन सम अदर स्टॉक, इट विल मेक मी 2x 3x. सी, ये सारा बायस आपका तब आता है व्हेन यू आर नॉट क्लियर व्हाई यू इन्वेस्टेड इन अ कंपनी एंड यू डोंट नो अबाउट द रनवे. दिस इज अ गुड अप्रोच टू हैव. आई एम नॉट सेइंग कि ये अप्रोच काम नहीं करता, बट आई एम जस्ट सेइंग कि लेट्स अज्यूम देयर इज अ प्लेयर प्लेइंग इन द टीम, ही इज टाइमिंग द बॉल वेरी स्वीटली. आप उसको ये नहीं बोलोगे कि तू आउट होके आ जा, he knows how to play in those conditions. So if you have a winner, please ride them until unless there is something wrong. There might happen कि आपने 100 रुपये का स्टॉक लिया, वो 300 रुपये हुआ एंड यू आर टेम्प्टेड कि मैं इसको सेल कर दूं, एंड वो 300 से 220 पे भी आ गया, आपने सेल नहीं किया, यू माइट हैव रिग्रेट. बट वो हो सकता है कि वो 220 से फिर, इफ द लॉन्ग टर्म पाथ ऑफ द स्टॉक इज इंटैक्ट, द अर्निंग्स आर कमिंग, इंडस्ट्री के अंदर टेलविंड्स हैं, सब कुछ है, मैनेजमेंट इज वेरी गुड, इट माइट हैपन दैट it might just shoot up from 220 to 600 700. So if you had booked your profits, आपने अपना allocation कम कर दिया, you will miss out on the next 2x वाला journey. So always ride your winners. It's the most difficult thing to do, but do that. Another very important thing is not admitting your mistakes. See, investing के अंदर it is very very important that you admit your mistake. If you have been wrong in assessing the situation, आप उससे लड़ो मत कि नहीं मेरा थीसिस तो यही बोलता है. सी, यू कैन नॉट बी इमोशनल अबाउट इट कि इस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया तो ये तो चलनी ही चलनी है. आप हो सकता है कि आपने वो फैक्टर इन ना किया हो जो मार्केट को पता है, या ओवरऑल कुछ ऐसी सिचुएशन डेवलप हो रही है विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ. इफ यू हैव बीन रॉन्ग, एडमिट इट, कट द एलोकेशन. It's okay to sit on cash. As long as it's there in the bank, it's okay to sit on cash. It's okay to take some losses in the market. But वो losses से आप बड़े winners अगर बना सकते हो, that is what is more important. Another very important thing is you have a star player, and we talked about allocation. अगर वो star player perform नहीं कर पा रहा है, he is playing well in the nets, you know कि फॉर्म में आ ही जाएगा. समटाइम्स इट्स ओके कि आप उसका एलोकेशन चेंज कर दो, वो 8% पे आप उसको 4% पे ले जाओ जब तक वो फॉर्म में नहीं आता, एंड जो 4% पे आपने इनिशियली एलोकेट किया था एंड यू आर सीइंग दैट द कंपनी इज डूइंग रियली वेल, यू इंक्रीज द एलोकेशन टू 8%. इट्स ओके कि आप शफल करो एलोकेशन को, एंड दैट इज समथिंग वेयर इन योर गेम और योर एक्यूमेन कम्स इन कि आप कितना उसको एक गेज कर पाते हो. सी, इन्वेस्टिंग is 10% science, 20% science, 30% science. सबके पास सेम नंबर्स है, but it's more of an art. It is very important that you are able to gauge what is doing well, what is not doing well, what needs to come in, what needs to go out of your portfolio. So it's very very important that ways. And आपको ये देखना रहेगा कि अगर आपका स्टॉक है वो टेक्निकली बहुत ज़्यादा वीक है तो मैं उसका एलोकेशन थोड़ा सा रिड्यूस कर दूँ, तो वो कॉल्स आपको लेने ही लेने पड़ेंगे. Another very important thing is have your own captaincy style. See, don't clone anybody. हर एक का financial situation, हर एक का motive to invest, हर एक का expectation for return, हर एक का temperament will be very different from you. So please don't chase anybody for the tips. You can always seek inputs कि हाँ ये कैसे behave कर रहा है, इसने cycles देखे हैं, उसको respect करो. But validation के चक्कर में मत घूमो कि यार मैं सही इन्वेस्ट कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ. जब तक आपको वो वैलिडेशन रहेगा, यू विल नेवर बी एबल टू क्रिएट अ विनिंग पोर्टफोलियो फॉर योर सेल्फ, बिकॉज यू वॉन्ट नो वाई यू इन्वेस्टेड समवेयर.
एंड यू वुड बी डिपेंडेंट ऑन दोज पीपल कि इस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं और इससे एग्जिट कर देते हैं. सो प्लीज़ हैव क्लैरिटी इन योर हेड. Take ideas from everyone, but don't invest on borrowed conviction. A very important thing is avoid playing on the pitches जहाँ पे क्रीम निकल चुका है. अभी वो डे 3 डे 4 के टेस्ट मैच हो जाता है, वहाँ पे टीम बहुत अच्छे रन्स बना के चली जाती है एंड स्पिन फ्रेंडली ट्रैक हो जाता है, वहाँ पे जाके हिटिंग करोगे तो मैच को लूज करोगे. एटलीस्ट ट्राई टू ड्रॉ. तो जहाँ पे FIIs DIIs बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने ड्रीम रन बना लिया है कंपनी के अंदर, सो देर आर स्टेजेस इन द मार्केट. एक होता है आपका एक्यूमुलेशन स्टेज होता है, अगर आप उससे पहले चले गए एज एन अर्ली इन्वेस्टर और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज से पहले बेच के निकल जाओगे तो यू विल हैव द ड्रीम रन इन द मार्केट. सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ दैट. मतलब ऐसे स्टॉक में मत घुसो जहाँ पे द स्टोरी हैज़ प्लेड आउट, एटलीस्ट फॉर अ टेम्पररी टाइम पीरियड स्टोरी हैज़ प्लेड आउट, सब कुछ वो क्रीम सबने कर लिया है, तो देख के यू नीड टू एंटर अ स्टॉक कि उसका क्या स्टेज में चल रहा है वो. सो बी वेरी अवेयर ऑफ दैट. एंड ऑल्सो रिमेंबर कि जो आपका मल्टी बैगर रिटर्न्स बनेंगे, सी देर आर सर्टन स्टॉक्स विच आर योर स्टार्स लाइक हु हैव परफॉर्म कंसिस्टेंटली फॉर 10 to 20 years 30 years and they have been multi baggers in their prime. अब वो आपके लेजेंड्स बन जाते हैं. दे विल हेल्प यू सर्वाइव बट दे माइट नॉट विन यू मैचेस. सो आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा स्मॉल कैप और इन लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर. एंड स्मॉल कैप के अंदर भी यू नीड टू बैक योर स्टॉक्स बिकॉज थोड़े टाइम के लिए वो लोग हो सकता है कि परफॉर्म ना करें, रिजल्ट्स भी अच्छे दें एंड वो परफॉर्म ना करें. सो यू नीड टू हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच टू योर पोर्टफोलियो. Another very important thing which I believe, and these are the last 2 points, and there are many other things which are there, but they might get repetitive. It's the soul of the company. You need to have that trust. Character क्या है, management कैसी है, कैसी उनकी commentary आती है, and I do believe कि people running the company are very very important and you will never be able to gauge them fully कि वो कैसे लोग हैं, उनका motive क्या है. So keep a close tab on that कि वो salaries कैसे draw कर रहे हैं, ESOPs कैसे हैं and related party transactions तो नहीं है. Plus you look at the financial statements also कि कैसे they are building their बैलेंस शीट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स उनके देखो आप कि कैसे रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा नहीं है. तो ये एक बहुत बड़ा हाइजीन फैक्टर है कि उनकी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस कैसी हैं. सो ऑलवेज लुक एट द कैरेक्टर ऑफ द कंपनीज कि हाँ यार ठीक है, द स्टॉक्स आर नॉट डूइंग वेल, द कंपनी इज डूइंग रियली वेल एंड देयर डिस्क्लोजर्स हैव बीन वेरी ट्रांसपेरेंट. आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड इट इज़ फ्रॉम एनी स्पोर्ट. आप कभी भी देखोगे नो कैप्टन हैज़ अ 100% रिकॉर्ड. इफ एनी इन्वेस्टर इज टेलिंग यू आर मेरे 100 में से 80% पिक्स आर ऑलवेज राइट, आई डोंट नो, मे बी I don't have any words to say, but I just feel कि if you have a 60-50% hit rate also, you will make it big if you follow some of the things which I have stated. And you might fail also. I mean, I might also fail implementing them. See, it's all about the psychological aspect. The important thing for an investor is कि आप जो bigger games है वो जीतो. That wins you championships. I mean, if you go through the statistics also, I mean, there is no captain in cricket who would have won 70-80% of the matches. Even the best would have been 60-65% का win percentage. But what distinguishes the best captains out of the ordinary ones is the fact that they won crucial matches and they won championships. That is what is more important कि आप अपना टेम्परामेंट कैसे करते हो, आप अपने लूजर्स को कितनी जल्दी कट करते हो, आप अपने विनर्स को कितना राइड करते हो, आप अपना एलोकेशन कैसे करते हो, आप बिहेव कैसे करते हो, हर डिप के अंदर पैसा तो नहीं डालने चले जाते हो. आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आपके अंदर वो टेम्परामेंट होना चाहिए कि नो, दिस इज नॉट द टाइम टू प्ले अ ग्लोरी शॉट, दिस इज नॉट द टाइम टू एच द बॉल टू द स्लिप. माई पोर्टफोलियो आई नीड टू कट डाउन ऑन द ड्रॉ डाउन. यार अभी नहीं करना है इन्वेस्ट, अभी लेट मी वेट, व्हेन द सिचुएशन विल बी क्लियरर विल रीच दैट गोल ऑफ 20% केगर या 18%, और कई साल हो सकता है 15% पे भी रुकना पड़े. बट द एंड गोल इज वॉट, आई डोंट इरोड माई कैपिटल. सो दिस इज हाउ आई सी मार्केट एंड I just feel कि I should have made a video on this and this is my learning from the market कि starting valuations matter नहीं करते, ये सब कुछ it's a waste, right? Ultimately price is what you pay and value is what you get. ये investing है, आप कुछ भी देख लो, this is what is investing. So if you love this video, do subscribe to my channel and do comment in the box below. Thank you.